Honorable Speaker, Lok Sabha, respected Shri Om Birla Ji, Minister of State for Youth Affairs and Sports, Shri Nisit Pramanik Ji, my colleague in the Lok Sabha and a very dear friend, Shri Manoj Tiwari Ji, Secretary Youth Affairs, Shrimati Meeta Rajiv Lochan Ji, Secretary Sports, Shrimati Sujata Chaturvedi Ji, officials and friends who have gathered here from the various parts of the country. Let me first welcome you all and congratulate you to be amongst those talented youth who have been selected from across the country. Seeing all of you youngsters assembled here gives me a lot of hope for our present and the country's future. Honorable Prime Minister Modi, in his Mann Ki Baat addressed on 31st December 2017, had extensively spoken about giving a chance to the youth to put forth their views on various issues concerning the country. And I take great pride that in fact that the Ministry of Youth Affairs and Sports have left no stone unturned to realize Prime Minister Modi's vision. And let me also thank the Honorable Speaker for helping us to realize this dream. As we conceptualize the first edition of the National Youth Parliament Festival in the year 2019, which was organized with the theme, Be the Voice of New India and Find Solutions and Contribute to Policy. More than 80,000 youngsters participated in the physical mode. The second edition of the National Youth Parliament Festival 2021 was organized with the theme Yuva Utsah Naye Bharat Ka, which was witnessed by more than 23 lakh youth and stakeholders across the country in the virtual mode during the COVID-19 pandemic. And the third edition of the National Youth Parliament Festival 2022 was organized with the theme, Be the Voice of New India and Find Solutions and Contribute to the Policy, with participation of more than 2.44 lakh youth from across the country. This year, the fourth edition of the National Youth Parliament Festival 2023 was launched with the theme, Ideas for a Better Tomorrow, India for the World. You all would be glad to know that the district youth parliaments were conducted in January 2023. Over 2 lakh youth from more than 748 districts of all states and union territories participated at 150 venues across the country. अब 2 लाख युवाओं ने तो भागीदारी की, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी 2 लाख युवाओं में से जो 85 चुनकर हम सबके बीच में आए हैं, मैं एक बार आपकी और अपनी ओर से इन सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन यहाँ पर करता हूँ। मैं जहाँ इस मंच के दोनों ओर देख रहा हूँ कि दोनों सचिव भारत सरकार की महिला हैं और वहीं पर 85 में से पार्टिसिपेंट भी 61 भारत की बेटियां हैं। सो मेरे युवा साथियों, ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम देश के किसी कोने में जाएं और एक राज्य की बात नहीं, हम देखते हैं कि किसी भी कॉलेज स्कूल का एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो या खेलों का ही फंक्शन क्यों ना हो, वहाँ पर भारत की बेटियां 10 में से 7 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के रूप में सबसे आगे आती हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भारत में बेटियां कैसे आगे बढ़ रही हैं। मोदी जी जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने उससे भी आगे बढ़ने का काम किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक उदाहरण माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। पिछले साल जब हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ तो उसमें से 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और उसमें से 11 बेटियों ने तोड़ने का काम किया। और इस बार जब मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए तब 25 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और उसमें से 19 से ज्यादा बेटियों ने तोड़ने का काम किया।
अब इसी तरह से रिकॉर्ड कुछ भारत ने भी तोड़े हैं। 2014 से पहले भारत की छवि फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज की थी, और फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि लड़खड़ाती अर्थव्यवस्थाओं में फ्रॉम फ्रेजाइल 5 वी हैव बिकम फर्स्ट 5 अमंग द फर्स्ट 5 इकोनॉमीज। और ये इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो काम कैसे देश बदलता है 8 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हमने देखा है। कहां एक समय था 2013-14 तक पॉलिसी पैरालिसिस की बात करते थे, आज पॉलिसी रिफॉर्म्स के माध्यम से हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यही नहीं मेरे युवा साथियों, जब दुनिया के सामने आपदा आई, हम सब लोग लॉकडाउन में बंद थे, एक और मोदी जी की सरकार में नीति निर्माण हो रहा था, पॉलिसी रिफॉर्म्स लाने का काम हो रहा था। नीचे आम जनमानस को सुविधाएं देने के लिए हमारे वॉलंटियर्स जो थे, यूथ वॉलंटियर्स, वो देश भर में सर लाखों नहीं करोड़ों हमारे युवाओं ने देश में अनाज बांटने का काम, कोविन ऐप के बारे में जानकारी, आरोग्य सेतु ऐप, ये सब करने का काम युवाओं ने किया। तो वहीं पर भारत ने अपनी 2 वैक्सीन भी बनाई, 220 करोड़ वैक्सीन देश में मुफ्त लगाई और दुनिया के 150 देशों को दवाई और वैक्सीन देने का काम किया, और अपने पड़ोसी देशों को 30% दवाई, अपनी कुल दवाई का भी देने का काम, यानी कि पड़ोसियों की जान भी बचाई, और दुनिया भर में भी भारत ने एक नई ऊंचाई पाने का काम किया है। आज जहां लोग कहते थे कि भारत में लाखों लोग मर जाएंगे, इतनी मृत्यु हो जाएगी भूखमरी से, महामारी से, हम सीना ठोक कर कह सकते हैं ना भूखमरी से मरने दिया, क्योंकि 80 करोड़ गरीबों को 28 महीने तक मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी सरकार ने किया, मुफ्त में दवाई से लेकर वैक्सीन लगवाने का काम किया, और अर्थव्यवस्था को भी चरमराने नहीं दिया। हमने दुनिया भर के 162 देशों से 61 सेक्टर में, भारत में 31 राज्यों में रिकॉर्ड एफडीआई लाने का काम भी किया है, और जो भारत की अर्थव्यवस्था है आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है। अर्थव्यवस्था तो बनी, लेकिन साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में हमारे युवाओं ने क्या शानदार काम किया। आप स्टार्टअप नेशंस देखिए, आज से 7-8 साल पहले भारत का नाम कहीं नहीं आता था। केवल एक पॉलिसी में बदलाव करके प्रधानमंत्री जी ने युवाओं का हाथ पकड़ा, आगे बढ़ाने का काम किया, और युवाओं ने अपनी ताकत को दिखाया है। मात्र 8 वर्षों में भारत को आज दुनिया के पहले 3 स्टार्टअप नेशन में लाकर हमारे युवाओं ने खड़ा कर दिया है। मेरे साथियों, 4 से ज्यादा स्टार्टअप्स आज भारत में हैं, 107 यूनिकॉर्न भारत में है, यानी कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स, यानी कि सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हमारे देश में हैं। दुनिया में रोज नए सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हमारे देश में बन रहे हैं, और 3rd लार्जेस्ट हम लोग स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में आकर खड़े हुए हैं। यूपीआई का नाम सुना है किसने? यूपीआई भीम। मैं यूपीए की सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं यूपीआई भीम की बात कर रहा हूं, एक ऐप का जहां पेमेंट ट्रांसफर्स के लिए बहुत बड़ी शुरुआत हुई। लोग हंसते थे 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा जनधन खाते खोलने हैं, तो मुझे याद है प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से अभी भाषण देके खत्म नहीं किए, मीडिया में आलोचना होनी शुरू हो गई, अरे इतने बड़े देश में कहां खाते खुलेंगे, क्यों गरीब का खाता खोलेंगे। लेकिन when we talk about JAM Trinity, Jan-Dhan Aadhaar Mobile, it speaks how we brought in more transparency and accountability into the system, how delivery mechanism has become more better, how last mile delivery has been ensured, and today we can say what in the earlier regimes Rajiv Gandhi ji used to say कि मैं 100 रुपया भेजता हूं, 15 रुपया नीचे पहुंचता है, 85 रुपया कौन खाता था। आज हम कहते हैं हम 100 रुपया भेजते हैं तो 100 रुपया ही खाते में पहुंचता है।